Students, and welcome to biology class for standard 9, and I'm your teacher Sadil Shad Ali. I'll be teaching you the biology subject for the online classes. Due to COVID-19 pandemic, we are switching towards the online education because this is the only solution to fulfill the needs of the educational loss of the students. So let's start with final term syllabus. In midterm, we were having 4 subjects. Initial 4 chapters were there. But after that, when we talk about the chapter number 5, that is the first chapter of the final term, chapter number 5, that is cell cycle. So let's start from the first chapter of the final term. The name of the first chapter is, this is biology standard 9 class. Chapter number 5. Chapter number 5 is cell cycle. As in chapter number 4, we studied about the cell, the structure of the cell, different organelles of the cell, different functions of these organelles which are found inside the cell of living things. So after that, in cell theory में हमने पढ़ा था कि new cells are formed by the division of pre-existing cells. नए सेल तभी बनेंगे जब पहले से सेल जो मौजूद होंगे उनकी डिवीजन होगी. तो उनकी डिवीजन को, the division of cell, again the formation of identical cell from the parent cell is called the cell cycle. So before proceeding to the cell cycle, what is cell cycle, how cell divides, let's come to the basic thing. Again we are learning about the basic structure of the cell. कि cell की basic structure क्या होती है, that you have studied in chapter number 4 as well. So when we talk about the basic structure of cell, you already know that basic structure of cell consists of 3 things. The outermost membrane, the outermost part of cell is called cell membrane. And the central part is called nucleus. And the rest of the part in between, what we say, in between cell membrane and nucleus, the rest of the part in between cell membrane and nucleus is called cytoplasm. You already know this is the basic structure of cell, consists of these 3 things. This is basic structure of cell. All the living things, whether they are the plants, fungi, alga, bacteria, or what we can say human beings, living things, cells possess these 3 basic structures. Apart from these things, just like cell wall which is present in the plant cell only but not in the animal cell, when we collectively, when we say generalized living things का cell जो होता है basic structure कितनी चीजों पे consist करता है? There are 3 things: cell membrane, nucleus and cytoplasm. Outermost layer cell membrane, central part nucleus, and the rest of the part in between cell membrane and nucleus is called the cytoplasm of the cell. Now अगर हम सेल की डिवीजन की बात करें तो बेटे आपने देखा सेल के 2 पार्ट हैं. सेल की डिवीजन पढ़ने से पहले सेल के 2 पार्ट आप देख रहे हैं. सेल जब भी डिवाइड होगा तो मतलब अगर मैं कहूं इस सेल से इसकी डिवीजन हुई, कितने सेल बने? 2 सेल बने. लेट्स से कि अगर ये सेल डिवाइड हुआ तो इससे 2 सेल बनेंगे.
इन दिस वे। अब देखिए एक सेल था, इसके दो सेल बन गए आफ्टर द डिवीजन। इट मींस कि साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हुआ है और न्यूक्लियस ऑफ सेल भी डिवाइड हुआ है। तो सेल साइकिल जो होती है बेसिकली कॉन्सिस्ट ऑफ टू थिंग्स, दो किस्म की डिवीजन होती है। एक को हम कहते हैं कैरियो काइनेसिस। कैरियो वर्ड निकला है कैरियोन से, एंड यू ऑलरेडी नो कैरियोन मींस न्यूक्लियस। तो मतलब पहले इस सेल का, जो दो सेल बनने जा रहे हैं, इस सेल का क्या डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। सो इट इज सिंपली डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, जैसे अगर मैं कहूं कि ये सेल आपका दो सेल्स में जस्ट लाइक दिस वे, कि एक सेल ये है, एक सेल ये रहा और दूसरा सेल ये है। अच्छा, दो सेल्स बने, तो लेट्स सी, ये आपकी यहां पे क्या है, सेल डिवीजन। हम कहेंगे कि सेल डिवीजन हुई। दिस इज द जस्ट सिंपली द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन या सेल साइकिल के पूरे फेजेस नहीं पढ़ा रहे, ये इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कि सेल साइकिल स्टार्ट कैसे होगी, पहले कौन सी चीज डिवाइड होगी, फिर डिफरेंट फेजेस होते हैं। सेल जब भी डिवाइड होगा, एक सेल से दो सेल बनेंगे, तो सबसे पहले उस सेल का न्यूक्लियस पार्ट जो होता है डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस पार्ट जो डिवाइड हुआ, उस न्यूक्लियस पार्ट के डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। इट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। देन आफ्टर, जाहिर सी बात है, अब इस सेल के पास भी साइटोप्लाज्म है, इस सेल के पास भी साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। Cytokinesis is division of what? It is division of cytoplasm. Division of cytoplasm is called cytokinesis. Let's see कि बेटे ये जो सेल था जो डिवाइड हो रहा था, इसकी डिवीजन डिटेल में तो आप पढ़ेंगे। जिस सेल की डिवीजन हुई, उस सेल को हम कहेंगे पेरेंट सेल। और इस सेल की डिवीजन के बाद जो दो सेल आपको डिवाइड होके मिले, इनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स। आफ्टर द डिवीजन टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, उन सेल्स को हम डॉटर सेल्स कहते हैं। लेट्स से कि भाई ये जो डिवीजन थी, पहले आपको मैंने बता दिया, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, उसी को हम सेल डिवीजन कहते हैं या सेल साइकिल कहते हैं। इनके फेजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स से जब सेल डिवीजन होती है, तो सबसे पहले कौन सी चेंजेस आती हैं, कौन कौन सा मटेरियल पहले जो विजिबल होता है, पहले जो नहीं होता। लेट्स से अगेन आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल। एज यू नो कि आपको पता है बेटे कि ये आपका जो न्यूक्लियस है, दिस वन, दैट इज सेल सेंट्रल पार्ट, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये आपका इस सेल का साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटे। अब इस न्यूक्लियस जो होता है सेल का, इस न्यूक्लियस को अगर आप इंडिविजुअली स्टडी करें, इसको फर्दर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जब देखा गया, इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जब इस न्यूक्लियस को देखा गया, तो दैट न्यूक्लियस contains
a network of chromosomes. क्रोमोसोम्स का नेटवर्क देखा गया इन दिस वे। अब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देखें बेटे, जैसे सेल का फ्लूइड होता है उसको हमने साइटोप्लाज्म कहा, तो इसी तरह न्यूक्लियस का भी जो फ्लूइड होगा उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और इस नेटवर्क को हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। And what is chromatin network? It is network of chromosomes. भाई अब आ गए कि देखें इस न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस में जो नेटवर्क होता है क्रोमोसोम्स का, अब सवाल पैदा होता है कि क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम्स कहां पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं। तो अब इन्हीं क्रोमोसोम्स की स्टडी करेंगे। तो ये जो नेटवर्क ऑफ क्रोमोसोम्स है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एक नेटवर्क बना हुआ है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स का, उन नेटवर्क को हमने कहा क्रोमेटिन नेटवर्क। एंड क्रोमेटिन नेटवर्क इज बेसिकली इट इज द नेटवर्क ऑफ क्रोमोसोम्स। तो डिस्कवरी क्रोमोसोम्स की क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी जो है साइंटिस्ट था वॉल्टर फ्लेमिंग। वॉल्टर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द क्रोमोसोम्स। ठीक है बेटे, तो ये तो आपने इन क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी आपने किस साइंटिस्ट ने की, वॉल्टर फ्लेमिंग ने। अगर इसी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया जाए तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, एज वेल एज अगर हम बात करें कि क्रोमोसोम्स की शेप्स किस किस्म की होती है, तो क्रोमोसोम की शेप, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर अगर हम करें तो लेट्स से कि अगर इसी क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर जो है, दैट क्रोमोसोम जिसने वॉल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, इसी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम की। ठीक है बेटे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो जिस पार्ट में ये सिंगल क्रोमोसोम है, जिस पार्ट पे ये जो आप इनकी आर्म्स देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। जैसे हमारे बाजू होते हैं, इसी तरह क्रोमोसोम की भी आर्म्स होती हैं। सो आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड क्रोमेटिड्स, इनको कहेंगे क्रोमेटिड्स। और इस क्रोमेटिड्स जो है, जो आर्म्स हैं, these are called arms of chromosome। ये आर्म जिस पॉइंट पे आपस में ज्वाइंट होती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं, दिस पॉइंट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्रोमोसोम वेयर दीज टू chromatids are joined, this is called centromere। इसकी जो आर्म्स हैं, इन आर्म्स पे आपको बीड लाइक स्ट्रक्चर्स शो होंगी व्हेन वी सी अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कि क्रोमोसोम्स possess that bead like structures in this way। these bead like structures are called genes। ये क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन्स आर हेरिडिटी यूनिट्स, because they contain genetic
इंफॉर्मेशन। हेरिडिटी यूनिट्स क्यों कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं हम उन कैरेक्टर्स को, द कैरेक्टर्स व्हिच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऐसे कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से उनकी औलाद में ट्रांसफर होते हैं, वो उनको हम हेरिडिटी कहते हैं। और वो हेरिडिटी किसके अंदर होती है? जीन्स के अंदर होती है। जीन्स कहां लोकेटेड होते हैं? क्रोमोसोम्स पे। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, हम ह्यूमन बीइंग्स किससे बने? सेल से बने, मतलब सेल के अंदर क्रोमोसोम्स भी होंगे। तो क्रोमोसोम कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। अब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ी आपने, क्रोमोसोम की डिस्कवरी पढ़ी, जिसमें जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आर द हेरिडिटी यूनिट्स ऑफ व्हाट? हेरिडिटी यूनिट्स बिकॉज़ दे कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन जो हम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर होती है उसको आप हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी इज द कैरेक्टर्स, heredity is what? Characters which are transferred. I am writing the definition as well. Heredity heredity क्या होती है? Heredity is simply characters which transfer from parents to offspring। offspring का मतलब है औलाद। कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उनको हम हेरिडिटी कहते हैं। और हेरिडिटी किसमें होती है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम्स में भी किसमें? जीन्स में। जीन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसमें होता है? सेल में। तो हर सेल, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, तो हर किसी का अपना जीन्स होंगे, उनका जेनेटिक इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें सिर्फ आपको सेल साइकिल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि सेल जब डिवाइड होगा तो पहले कौन सी चीज डिवाइड होगी। सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा, दैट इज कॉल्ड द कैरियोकाइनेसिस। फिर सेल की साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, दैट इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस। जो सेल डिवाइड होगा दैट इज कॉल्ड द पेरेंट सेल। जो सेल न्यू बनेंगे उनको कहेंगे डॉटर सेल्स। सेल की बेसिक स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कंटेन्स द network of chromosome, that network is called the chromatin network। क्रोमोसोम डिस्कवर किए वॉल्टर फ्लेमिंग ने। क्रोमोसोम की ये स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स होती हैं, आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड द क्रोमेटिड्स। both chromatids are joined together at a point that is called the centromere। this chromosome contains bead like structures, these are called the genes। genes are basically heredity units। genes आपके क्या हैं? हेरिडिटी यूनिट्स हैं, बिकॉज दे कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हेरिडिटी क्या है? ऐसे कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सो इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास फर्दर हम क्रोमोसोम्स के डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल प्रोसीड टू द सेल डिवीजन फर्दर इन आवर कमिंग लेक्चर। सो टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर।